morning, students, and welcome back. Yesterday we were talking about the work of the commission. Then later we came to the Kotari commissions, who was appointed as a chairman. Dr. D.S. Kotari was the chairman of the Kotari commissions. Dr. J.P. Nayak made valuable contribution to the work of the commission and all. And what are the pattern? That is 10 plus 2 plus 3. That is what we are following now, right now. And Maharashtra government has adopted the 10 plus 2 plus 3 pattern from 1972, and the first board exam of standard 10th was conducted in the year 1975. Now the objectives of the educations, according to the Kotari commission, we came to know about that. The higher educations, and we talked about the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who is the chairman of the central government university education commissions. Now we will be proceeding. Method of functioning. Okay, the commission accepted the 5-year plans method. It began to sanction and disburse grants to the university on the behalf of the government. Now this the commission we are talking about accepted the 5-year plan. In the last lesson we were talking about the plans. There were 9 5-year plan. In the last chapter we were talking about, and we came to know about that. And so this commission has accepted the 5-year plans method. It began to sanction and disburse the grant to the university on the behalf of the government. मतलब गवर्नमेंट के बदले on behalf of government एक कमीशन उसके बदले वर्क करने लगे. The commission undertakes the planning of university educations. वो यूनिवर्सिटी को किस तरह काम करना चाहिए, वॉट एवर द प्लानिंग शुड बी डन, दैट इज अंडरटेकन बाय दिस कमीशन. कोऑर्डिनेशंस ऑफ syllabi गिविंग प्राइमेसी टू द नेशनल नीड्स थ्रू एजुकेशंस एंड प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द वेरियस स्कीम्स ऑफ हायर एजुकेशन. यानी तरह तरह के स्कीम वगैरह इम्प्लीमेंट किए गए थे, लागू किए गए थे फॉर द हायर एजुकेशन. इट हैज़ डन अ वैल्यूएबल वर्क इन एस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज, development council centers for advanced studies for postgraduate educations, establishing new universities. After the advent of the televisions in India, it initiated the countrywide classroom program, which is telecast by the Doordarshan on the behalf of the commission. So what is they are saying, this commission has undertaken many works related to education. उन्होंने काफ़ी सारे काउंसिल्स बिठाए, सेंटर्स तैयार किए, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ डेवलप किए फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड न्यू यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टेब्लिश्ड इवन आफ्टर द एडवेंचर्स ऑफ द, मतलब जो टेलीविज़न जब आया इंडिया में, तो जब टीवी आई उसमें, तो उन लोग ने कंट्री वाइड क्लासरूम करके एक प्रोग्राम चला रहे थे इन द दूरदर्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द कमीशन. मतलब कमीशन के थ्रू यूनिवर्सिटी से कंट्री वाइड क्लासरूम का ये प्रोग्राम चलाया जाता था बच्चों के लिए, और ज्ञान वगैरह तो स्प्रेड करने के लिए थ्रू द दूरदर्शन. Now see, do you know the art department was established in 1965 in the Maharashtra to frame the policy of art educations, and for its implementations by the institutes of art. This department undertook the responsibility of organizing the drawing grade examinations at the school level. तो आर्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1965 महाराष्ट्र में, एंड टू फ्रेम द पॉलिसी ऑफ आर्ट एजुकेशन. मतलब जिसको भी ड्राइंग एंड ऑल, किसी भी क्रिएटिव वर्क्स में अगर ये करना है तो उनके लिए आर्ट डिपार्टमेंट खोला गया. आर्ट एजुकेशन उसके प्रोवाइड किए गए थे बाय द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द आर्ट. ये डिपार्टमेंट अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशंस. ड्राइंग का ग्रेड एग्जामिनेशन उन लोग ने स्कूल लेवल पे, मतलब बच्चे लोग को स्कूल लेवल पे एग्जीबिशंस वगैरह लगाते थे, एग्जामिनेशंस होते थे, ताकि बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते ड्राइंग और आर्ट्स में भी वो आगे आ सकते. इसके लिए उनकी जो भी कला है रिलेटेड ड्राइंग, उसको बाहर निकालने के लिए ऐसे सारे एग्जामिनेशंस स्कूल द्वारा प्रायोजित किए जाते थे. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT. This is the body was established in Delhi on the 1st September 1961. Its main objective is to help the central government in the matters of school education. तो NCERT
NCERT किसके लिए किए गए थे? टू हेल्प द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद चाहिए था, इसके लिए उनका काम उद्देश्य यही था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करे ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल स्कीम। तरह तरह के एजुकेशनल स्कीम्स वगैरह इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करते थे। The NCERT was given the responsibility of the educational research and development, training, extensions, educational programs, restructuring of the school's curriculum and textbooks. It has played a central role in designing school curricula and the textbooks with the cooperation of the Central Board of Secondary Education CBSE। तो गवर्नमेंट ने क्या कि NCERT को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो, एक्सटेंशंस हो, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो, स्ट्रक्चरिंग करने का स्कूल का जो भी प्रोग्राम, वो सारे काम उन्होंने NCERT को सौंपा था इनके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। तो दे हेल्प्ड अ लॉट, इनका काफ़ी बड़ा मेन रोल रहा है NCERT का। And another school curricula and textbooks with the cooperations of the CBSE बोर्ड के साथ मिलके बच्चों को किस तरह के टेक्स्ट बुक्स वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, क्या स्टेट लेवल का कैसा CBSE पैटर्न्स के, उस हिसाब से वो ये देख के वो काम करते थे। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सेकेंडरी एजुकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। इट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द डिज़ाइनिंग वर्क बुक्स एंड बुक्स फॉर द टीचर। तो दिस हेल्प टू, क्या इन लोग ने डिज़ाइनिंग किए थे बच्चे लोगों के लिए वर्क बुक्स, जो भी बुक्स इसके हिसाब से स्टेट बोर्ड के हिसाब से या CBSE पैटर्न के हिसाब से जो भी बुक्स होते ये लोग डिज़ाइन करते थे। द हैंड बुक्स जो टीचर्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, टीचर्स के ऐसे हेल्पिंग थिंग्स, उनको काफ़ी हेल्प होता है इन सब हैंड बुक की वजह से, ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके द वे एंड ऑल। And in teachers training in developing teaching learning techniques and conducting talent research examination at the national level। तो ये सब चीज़ें NCERT देखते थे, रिस्ट्रक्चरिंग करने का स्कूल को, स्पेशल ट्रेनिंग एंड हॉल एजुकेशनल प्रोग्राम्स, करिकुलम, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो भी है, विद द हेल्प ऑफ द CBSE एज वेल एज दिस कमीशन NCERT लोग सब मिलके डिज़ाइन करते थे बुक्स और वो बुक्स के। इवन टीचर्स को भी हेल्पिंग हैंड की तरह हैंड बुक्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे। ओवरऑल उनको टीचिंग टेक्निक्स वगैरह सिखाया जाता था, टैलेंट्स एंड ऑल। इट वाज टेकन इन द नेशनल लेवल, एक नेशनल लेवल के तौर पर उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया था। CERTS was established in all the states of the lines of the NCERT. The Maharashtra State Council of Educational Research and Training was established in Pune in 1984. महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये एस्टेब्लिश किया गया था पुणे में इन द ईयर ऑफ 1984। दिस इंस्टीट्यूट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज improving the standard of the primary education, in-service training the teachers, training in the areas of the syllabi and the evaluations, vocational guidance for the students, standard 10th and standard 12th exams and other educational functions. This institute is known as the academic authority. It brings out a periodical called Jeevan Shikshan. तो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने क्या वॉज एस्टेब्लिश इन 1984। इसका फंक्शंस ये था कि दे विल बी इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन से द बेसिक एजुकेशन जो छोटे बच्चों का होता है उसको इम्प्रूवमेंट करना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग इन द एरियाज ऑफ द सिलेबाई एंड द इवैल्यूएशंस, ओकेशनल गाइडेंस वगैरह दिया जाता था बच्चों के लिए जो स्टैंडर्ड 10th और 12th के बच्चे थे जो एग्ज़ाम्स के लिए अपियर होने वाले थे। एंड अदर एजुकेशनल फंक्शन, जो भी एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी वो बच्चों को प्रोवाइड करते थे या उसमें उनको जानकारी वगैरह दी जाती थी। तो एक पीरियडिकल भी छापा गया था, दैट इज समथिंग लाइक अ मैगजीन्स, दैट इज कॉल्ड अ जीवन शिक्षण। Now see, do you know
The Maharashtra State Bureau of Textbook Productions and Curriculum Research, Bal Bharati, was established in Pune on 27 January 1967. Bal Bharati prepares textbooks for the school children. Textbooks are made in 8 languages, namely Marathi, Hindi, English, Urdu, Kannada, Sindhi, Gujarati, and Telugu. Kishore, a monthly magazine for children, is also published by the Bal Bharati. यू नो इट वेरी वेल कि आपका जो इंग्लिश के बुक्स होते हैं और मराठी या हिंदी के, तो ये बाल भारती के प्रोडक्शंस होते हैं, उनकी बुक्स होते हैं. तो एक अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस में है. इसमें यू कैन सी द रीजनल लैंग्वेजेस, मराठी है, हिंदी इज़ देयर, इंग्लिश इज़ देयर, उर्दू, कन्नड़, सिंधी. तो इन सारे लैंग्वेजेस में बाल भारती अपने बुक, टेक्स्ट बुक प्रिंट करते फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए. National Policy on Education 1986. According to this policy, certain changes of the fundamental nature was brought about in the primary, secondary and the higher educations in keeping with the changing needs of the society. In the National Policy on Education 96, according to ये policy में काफ़ी सारे changes किए गए थे, fundamental changes किए गए थे in the primary, secondary और higher educations में. Okay, means from नर्सरी यू कैन से टू द हायर एजुकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के जो ओवरऑल चेंज होता रहता है सोसाइटी में, हर एक चीज़ों की चेंजेस होते, तो उस हिसाब से इनके एजुकेशंस में भी चेंजेस लाए गए फ्रॉम द प्राइमरी टू द हायर सेकेंडरी एजुकेशंस. अंडर दिस पॉलिसी अ कॉमन को करिकुलम वॉज फ्रेम फॉर ऑल स्टेट्स. The expectation is that by this means all students in India will get equal educational opportunity. तो expectations क्या था कि सब लोगों को, बच्चे लोगों को ओवरऑल इन इंडिया विल गेट ए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, हर एक बच्चे को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा उन्होंने कोशिश की. There is a scope in the national curriculum and individual state by bringing it flexibility in accordance with their cultural, geographical and historical needs. तो उन्होंने इतना ये किया कि हर एक जगह का एक अलग अलग ये रहता है. इट कैन से द वे दे ब्रिंगिंग अप, हर एक एजुकेशन हर एक स्टेट में अलग अलग होता है उस हिसाब से. तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया था उस सिस्टम्स को, उस स्टेट में, कि वो अपने हिसाब से वो बच्चों को कल्चरल हो या जोग्राफिकल हिस्टोरिकल नीड से रिलेटेड, मतलब उसकी उनके अपने सराउंडिंग से रिलेटेड उनको उसकी ज्ञान या स्टडी उनको प्रोवाइड कर सके. ठीक. व्हेन वी आर इन महाराष्ट्र, तो हम लोग महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं. द महाराष्ट्रन हीरोज़ के बारे में, वो फॉट फॉर द स्ट्रगल एंड ऑल, जहाँ यहाँ के कितने सारे लीडर्स है उसके बारे में. इफ़ यू गो टू द अदर स्टेट, तो वहाँ के स्टेट के आपको जानकारी, मतलब वहाँ के लोगों ने कितने देश के लिए, जब ये फ्रीडम का रेट था तो कितने कौन से लोगों ने लड़ा है इसके लिए, अपना बलिदान दिया. तो हर एक स्टेट को एक ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि वो अपने स्टेट के हिसाब से अपने जोग्राफिकल कंडीशंस और जो भी वॉट एवर द इट इज़ गोइंग ऑन उसके बारे में वो बच्चे लोगों को जानकारी दे. तो इतनी ये उनको सहूलियत दी गई थी. द प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 was prepared on the basis of the plan of the action designed on the national level for the effective implementations of the national policy on education 1983. Now see, do you know the primary education का education curriculum in 1988 was prepared on the basis of the plan. जो plan नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने प्रोवाइड किया था, उस प्लान के हिसाब से प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1980 का काम कर रहे थे. उसके हिसाब से वो ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वो 1986 में फॉर्म किया गया था. उसके हिसाब से प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह चलाए जाते थे. नाउ डू यू नो द competency based primary education curriculum 1995, even as the primary education curriculum 1988 was being implemented, a committee was formed at the national level of Dr. R.H. Dave as a chairman to determine minimum levels of learning. The Dave committee developed charts of minimum levels of the learning in languages, mathematics and environmental studies up to standard 5th. The chart showed the sequence of the learning of the competencies meant for each classes.
मतलब उन्होंने एक अलग सा कमेटी, दवे कमेटी वॉज इम्प्लीमेंटेड, जिसमें चार्ट्स ऑफ मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग इन लैंग्वेज that will come to know. इसके बारे में deeply we have to go through it, you can understand it later. Use of a satellite. Now use of a satellite. In 1975, India met and success in its attempt to use a satellite for the purpose of education. तो 1975 में हम लोग ने अटेम्प्ट किया सैटेलाइट का इस्तेमाल करके एजुकेशन की, उस सैटेलाइट का लोग उपयोग हम लोग एजुकेशन के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए इसका खोज उन्होंने किया. 1975 इंडिया मेट विथ सक्सेस इन दिस अटेम्प्ट. तो इनको उसमें सक्सेस मिला 1975 में. एकनाथ चिटनिस अ साइंटिस्ट विथ इसरो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिट. तो इसरो में एक एकनाथ चिटनिस नाम के जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल सॉरी, ताकि वो सैटेलाइट को एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया कर सके. सी ओ ये SAT, that is satellite instructional television experiment, was undertaken for the educational purpose. Satellite instructional television experiment SITE was undertaken for the educational purpose. Education purpose के लिए इसको लिया गया था under the leadership of Space Application Center of Ahmedabad. The concept of satellite education came out of this experiment. America had helped India in this program. The program helped to make provisions for the good standard of education in रूरल एरिया. और इस काम में अमेरिका ने भी इंडिया का मदद किया ताकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिल सके इन रूरल एरियाज, मतलब गांव में भी ये सब बच्चे लोगों को इसकी सुविधा मिल सके. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज IGNOU. दिस ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव दैट the stream of education should make its way into every average household of the country. This open university was established, इसके लिए एस्टेब्लिश किया गया था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ताकि सारे जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव काम था वो हर एक क्षेत्र में जाए, हर एक गांव में, हर एक इसमें कस्बे में जाए, हर एक गांव में, हर एक घर में ये एजुकेशन पहुँचे. The United Nations has declared 1970 as the International Education Year. Okay, see, remember this date. 1970 is declared as by the United Nations the International Education Year. In the same year, a seminar was organized in New Delhi on the subject of Open University by the Government of India Department of Education and Social Welfare Information and Broadcasting. University Grants Commission along with UNESCO, the idea of establishing an open university evolved in this seminar. ये जो सेमिनार बनाए गए थे दिल्ली में on the subject of the open university, the idea what happened sorry, वो आइडिया जो ओपन यूनिवर्सिटी का है वो इस सेमिनार में एस्टेब्लिश किया गया था. मतलब इसमें पहली बार इस सेमिनार में ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किए गए थे और इसको पर आगे विचार किया गया था कि दैट शुड बी हेल्ड ओवर हियर. In 1974, the government appointed a committee under the chairmanship of P. Parthasarathi, and the Open University took shape on the 20th September 1985. Parthasarathi was the chairperson of this and the Open University took shape. यानी Open University उसके बाद एक अपना एक छवि बनाने लगे, अपने एक शेप, उसका एक ग्रोथ होने लगे आफ्टर द 20 September 1985 इन अकॉर्डिंग्स विद द रिकमेंडेशंस एंड द सजेशन. जैसे भी एक कोई सजेशंस, अच्छे सजेशंस वगैरह किसी से मिलता है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करते थे. इट वॉज नेम्ड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. तो वो उसके लिए इंदिरा गांधी के नाम पे इसको रखा गया है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. Founded the Yashwantrao Chavan Maharashtra Mukta Vidyapith was established in Nashik in 1989. Find out about the Open University with the help of the internet.
तो आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड व्हाट इज़ दैट ओपन यूनिवर्सिटी, इसका फ़ायदा क्या है, व्हाई इट इज़ ब्रॉट अप, द रीज़न बिहाइंड दैट, ऑल यू विल गेट इन थ्रू दिस. Those who are unable to get a college education in the formal way are given concessions in the eligibility criteria, age and other conditions for the admission to the university. Means those students who are not able to take the admission फॉर्मल वे से किस तरह अगर उनको नहीं मिलता है, जो प्रोसेस रहता है कॉलेज में एडमिशन का, अगर उनको नहीं मिलता है तो उनको कंसेशन वगैरह दिया जाता था, क्राइटेरिया होती थी, उसको एक रिक्वायरमेंट होती थी जिसको फॉलो करना रहता है, एक एज होता है, अदर कंडीशंस फॉर द एडमिशन्स टू द यूनिवर्सिटी, और दूसरे भी कंडीशंस होते हैं जिसको अगर वो सेटिस्फाई फुलफिल करते हैं तो उनको उन स्टूडेंट्स को कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है. इन 1990 द इग्नो started an audio-visual distance education program through आकाशवाणी एंड दूरदर्शन. तो उन्होंने ऑडियो विजुअल एजुकेशन भी स्टार्ट किए थे थ्रू आकाशवाणी एंड दूरदर्शन. इट कंडक्टेड मोर देन 1000 curricula of various branches. It provides facility for education through 58 training centers in the country and 41 centers in the foreign country. तो ये इग्नो के वजह से क्या है, ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए थे आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा. इससे क्या है 59 ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए थे अपने देश में और 41 सेंटर्स इन द फॉरेन कंट्रीज. ओके, आई एम वाइंडिंग इट अप हियर. इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. तो नेक्स्ट इसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बाकी का पार्ट. इट्स अ लॉन्ग लेसन, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है. व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल, अपने इंडिया में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस है रिलेटेड टू स्टडीज़ एंड रिसर्च सेंटर्स वी कैन फाइंड. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, एवरीथिंग विल बी कमिंग टू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.